हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर यार मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने यूज़ किया है एंड दैट वर्क्स फॉर मी। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस दैट आई कैन लर्न इंग्लिश, देन दिस मेथड will definitely help you to learn English and get confidence and get fluency in the English. I'm not saying that my English is good and I speak very confidently, very fluently, but I have that much confident कि I can talk to anyone in English. At least I am able to share my thoughts, my emotions, my ideas to other person, and I am easily able to communicate with other person. So what are the things, what are the ways that I apply to get that level of confidence and fluency in English? I'm going to share with you, so stay tuned. And there is my water bottle, so let me drink some water because my throat is drying. So let me drink water. Okay, so it's been a long time I haven't created a YouTube video. So by the way, this is the first video, not the first video on YouTube, but I have another YouTube channel where I teach coding and programming related videos I create there. But this is a new video and I'm planning to create this type of video like self-help or English learning videos, so that other people can get some benefit from it. So this is the first video. Let me introduce myself. Like, I'm Abhinay and I'm from Chhattisgarh, and I just completed my BTech from my college. It is a private college, it is an engineering college in computer science, and currently looking for jobs and preparing for placement. Yeah, and that's the very important thing, because in this process I have to learn English and I have to communicate with clients in English. That's why I am learning English, and now I am able to communicate with people in English. So without wasting any time, make sure to subscribe the channel, because you will get so much concepts and tips and tricks in this channel, not just related to English. That I'll create a video, any type of video that will help you to grow in your life. So I followed 4-step formula, which is very important. First is structure, second is vocabulary, third is listening and speaking, and fourth is practice. You just have to do practice. The fourth point is very important. Let me tell you one by one. So स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज़ कि यार तुम बोलना चाहते हो कि मैं बाइक चला सकता हूँ, ठीक है. सो you don't know how to say that in English, because you don't know the structure, how to construct the sentence in English. So if you have blueprint, if you have structure, like first I had to tell the can, then this, so you can definitely follow those structure, and you can able, like you will be able to create सेंटेंस यूजिंग दोज स्ट्रक्चर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मुझे दिस टाइप का अगर इंग्लिश बोलना है, ठीक है, इस टाइप की मुझे सेंटेंस बनाना है, तो मुझे कौन से स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करना पड़ेगा. तो अगर आपको इस टाइप का सेंटेंस बनाना है कि मैं बाइक चला सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन स्विम, ठीक है, आई कैन राइड बाइक, आई कैन ड्राइव कार, तो यहाँ पास हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो कैन का यूज़ कब करेंगे, शुड का यूज़ कब करेंगे, माइट, मे, इस टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इन सभी मॉडल वर्ब्स का यूज़ कैसे करते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए कि मुझे इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनाने हैं, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि स्ट्रक्चर, यू हैव टू मास्टर द स्ट्रक्चर, लाइक हाउ टू क्रिएट अ सेंटेंस, हाउ टू क्रिएट sentence in English. Now let's come to the second step. Second step is की vocabulary. If you want to say कि I like cricket, you know, like मुझे क्रिकेट पसंद है, ठीक है. तो पसंद करना, किसी चीज़ का पसंद होना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइक करना, ठीक है. तो आपको पता था इसका
इंग्लिश मीनिंग, इसका इंग्लिश वोकेबलरी. दैट्स वाई यू आर एबल टू कंस्ट्रक्ट दैट सेंटेंस एंड यू आर एबल टू स्पीक दैट सेंटेंस. ठीक है. तो अगर आपको बोलना है कि मुझे दौड़ना पसंद है, अगर आपको पता ही नहीं कि दौड़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं, वोकेबलरी पता नहीं है, तो आप लोग नहीं बोल पाओगे. ठीक है. तो वोकेबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई लाइक रनिंग. आई वोक अप एट मॉर्निंग. ठीक है. टुडे आई वोक अप एट 5 AM एंड गो वेंट टू द मॉर्निंग वॉक और रनिंग. ठीक है. तो अगर आपको वोकेबलरी पता नहीं कि भाई इस हिंदी शब्द को मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, तो आप लोग बोल नहीं पाओगे. ऑल्दो कि आपको स्ट्रक्चर पता है कि कैसे मुझे सेंटेंस स्ट्रक्ट करना है, बट आपको उसका इंग्लिश मीनिंग पता नहीं है, तो आप लोग बोल नहीं पाओगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी. Try to read 5 to 10 vocabularies each day that is frequently used in daily life, in daily conversation. Don't just memorize random English vocabularies. You just have to learn basic 1000 English words that is frequently used in daily conversation, in daily life. Okay. So this is a second step, that is vocabulary. You have to master basic and essential vocabularies that is very useful. Now let's come to the third point. Third point is very important. Actually, the third point consists 4 things like reading, speaking, writing and listening. But I'll give you a 2 important thing. You can also do other 2 things. Okay. So listening is very important. Try to listen, try to consume content, try to watch movies, watch videos, listen English song as much as you can. Because when you start listening you are like आदत हो जाएगा तुमको कि यार मुझे इस वर्ड को कैसे सुनना है, कैसे बोलना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, इनकी आपको हैबिट्स बन जाएगी. फिर वो चीज़ें आपके लिए फेमिलियर होते जाएगा, क्योंकि हम लोग सुनते नहीं हैं. नॉर्मली स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या होता था कि मैं कोई इंग्लिश सॉन्ग सुन रहा हूँ या फिर कोई इंग्लिश वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आता था स्टार्टिंग. बट आपको क्या करना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है फिर भी चालू करो, देखो और उस चीज़ को समझने की कोशिश करो. एंड ट्राई टू लिसन केयरफुली कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे उसको प्रोनाउंसिएट कर रहा है. ठीक है. ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी. तो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो 1 साल 2 साल 1.5 साल तक तो कुछ बोलता ही नहीं है. ठीक है. क्योंकि वो ऑब्ज़र्व करता है, लिसन करता है. ठीक है. तो जब उसको पता चल जाता है कि भाई इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे वो बोलना स्टार्ट करता है. तो स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लिसन करना है. जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको लिसनिंग करना है, वॉच करना है, वीडियोस को देखना है. सबटाइटल ऑन कर लो अगर ऑन करना है तो. ठीक है. एंड उसके बाद आपको बोलना है. ठीक है, नॉर्मल बोलना है, स्पीकिंग. फर्स्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग. यू हैव टू स्पीक एज जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग. डोंट केयर कि यार दूसरे लोग क्या बोलेंगे या फिर आप इतने मिस्टेक कर रहे हो. मैं अभी भी मिस्टेक करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें एंड वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. सो आई हाईली रिकमेंड कि मेक मिस्टेक्स, लॉट्स ऑफ मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स. डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. Okay, a smart person, an intelligent person learn from their mistakes. They don't repeat same mistake again and again. Otherwise they are called dumb, बुद्धू. ठीक है. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. और द फाइनल स्टेप इज़ दैट कि प्रैक्टिस. यू हैव टू फॉलो ऑल दिस 3 points, 3 steps as much as you can. You have to practice all these things carefully, consistently, रेगुलरली विथ कंसिस्टेंसी के साथ. ठीक है. तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और वुमन परफेक्ट. ठीक है. सबको परफेक्ट बनाता है. सो ये था आज की इस वीडियो के अंदर. आई होप सो कि आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिले होगा. ठीक है. अगर आप लोग चाहते हो कि इन सब चीज़ के टॉपिक के ऊपर मैं कैसे और वीडियोस बना सकता हूँ, ठीक है, या फिर आपको वीडियोस चाहिए कि भाई मैं वोकैबुलरीज कैसे इंप्रूव करूँ, कैसे मुझे स्ट्रक्चर को मैं याद करूं, कैसे पढ़ूं, या फिर मुझे कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर ये सब चीज़ें आपको अगर जानना है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डे. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय. लेट मी टर्न ऑफ द कैमरा.